Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustasin, your teacher for CSC322 Operating System Concepts. Students, today we will start the new topic, means chapter number 3 of our textbook, which is the memory management. So, this is another task that is to be undertaken by the operating system, and it's a very interesting topic, and I'm sure that you will enjoy. So chapter number 3 of the memory management, thanks to Andrew S. Tenenbaum for providing us a beautiful textbook. Memory management, we have certain hierarchy in the memory. We have got some RAM. RAM is random access memory, and we know that this random access memory, although it has increased exponentially since the start of at least my career, when I was studying at Quaid-e-Azam University in 79-80, when we had the 64K RAM only, and it was doubled to 128K, and we all were very happy. But nowadays, you take up a very simple picture, and it is of the size of few hundred megabytes. We cannot think of such type of luxury in those days. But yet, even if we can have few hundreds of megabytes of the RAM available nowadays, but yet we call it as a finite resource. It is not infinite. So we need to optimize it. We need to define certain principle so that we could optimally utilize that. So we have already talked about the cache memory also. So there are three memories categories. अगर हम उसको आम फहम ज़बान में बात करें, सबसे पहले cache, which is very fast, which is within the CPU, or it is of the order of few hundred megabytes, yeah, few megabytes, 16 megabytes, 64 megabytes, or 256 megabytes that you can have a cache nowadays available. But since it is within the CPU, its speed is very fast. It almost works with the same speed as that of the CPU, and normally the hardware that manages that. So we are not worried about that. So we will not be talking about too much regarding the cache management, although there are few topics in the memory management in which we will talk about the cache also. Next is the memory, जिसकी हम बात कर रहे हैं, RAM, random access memory, which is of the order of few hundred gigabytes. It's a medium speed. Obviously it's a medium priced, and it is a volatile. वो जो cache है ना, वो भी volatile है. Cache memory volatile है. RAM is also volatile. Volatile का मतलब तो आपको पता है ना. Volatile means कि you need a power to maintain or keep the information into the memory. If the power is gone, then the information that is present in the memory is also gone, is lost. Then comes the disk. Disk is few terabytes. आजकल disks हैं, they are available. 1 terabyte or 4 terabyte तक की disks are available, or we can put up quite a few disks together to form a big storage or big archive that is of the order of few hundred terabytes also. It is very slow because it includes electromechanical, and it is obviously comparatively cheaper as compared to the RAM and as compared to the cache memory. But it's long lasting. You can keep the data in the disk for years and years, and it will remain there even if you switch off the power. So it is a non-volatile. Memory manager, which memory we are going to manage? So we will be concentrating mostly the memory management of the RAM, random access memory. We will not be talking about too much to the cache, although I promised that there are one topic where I will touch the cache also.
But we will not discuss in this particular chapter, we will not discuss the disk management, and we'll be talking about the disk management in the device management part of the operating system. So the memory manager has the job of using this hierarchy to create an abstraction. Abstraction मैंने आपको क्या बताया था, एक illusion है जो कि complexity को अपने अंदर hide करता है और एक rosy picture present करता है towards the user. So the memory manager है, it basically provide an easily accessible memory to the user, और उसकी जो complexities हैं उसको वो memory manager जो है खुद handle करता है. Nowadays we could have the systems where we just have one program at a time in the memory. It's very simple. We used to have the operating system, and that operating system is either in the lower part of the memory, and then we can load the user program. Then the second option could be you can load the operating system at the top. For example, हम अगर बात करें embedded system की, या अगर हम even बात करें आपके mobile phones की, where we have the operating system present in the ROM at the top of the memory table, and then you can load the user program into the one program obviously at a time, and we can execute that. If we talk about the personal computer, then we can say that the operating system is in the lower part of the memory and some part in the top of the memory also, and we can load one program at a time on the personal computers, and we could execute that. The simplest memory management है, where we just have only one program, no abstraction, means early mainframe computers of 1960s and early computers of 1970s and early personal computers of 1980s and early computers of nowadays. कौन से बला वो जो मोबाइल फोन है आपके, they all have this implementation. तो पलट के ना चीज़ें पलट के वापस आती हैं. जो 360 में हमने समझा था ऑब्सोलीट हो गई, वो 1960 में 360 के साथ ऑब्सोलीट हो गई, वो मिनी कंप्यूटर्स के साथ दोबारा आ गई, और फिर हमने समझा कि मिनी कंप्यूटर के साथ ही ऑब्सोलीट हुआ तो वो पर्सनल कंप्यूटर में आ गई. फिर 1980 के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, वी थॉट कि ये सारी चीज़ अब सिंगल कंप्यूटर सिंगल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेमोरी मैनेजमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन वो आजकल फिर आ गया इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स. तो यही वजह है कि आज भी हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि दे आर बीइंग रिपीटेड आफ्टर सम टाइम. नो एब्स्ट्रैक्शन एट ऑल, कैन ओनली हैव वन प्रोग्राम इन द मेमोरी. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है. यू कैन इजीली एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड नॉट अ हार्मफुल. बट इस प्रोग्राम के साथ देयर इज another program that is residing into the memory of the computer is the operating system. A bug in a program can destroy or can trash the operating system, especially in हमारी example जो है A और C में, क्योंकि ये रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है. यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये तो ऑब्वियसली मैप है बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जहाँ पे वेयर वी कीप फ्यू operating system related information over there, and that BIOS is mapped at the top of the memory, but the rest of the operating system is loaded from the disk into the RAM in the initial part. So any bug in the program in this area could disturb or destroy the operating system in the lower part of the system. Similarly, it can also destroy it here. और फिर उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको डिवाइस को ऑफ करने के बाद फ्रेश जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्क के ऊपर है, जो कार्ड के ऊपर है, जो रोम के अंदर है, उसको रीलोड करना होगा. सेकेंड, ऑन सम एम्बेडेड सिस्टम जो है, जो बी वाला है, जो जिसको मैंने स्किप किया, ये वाला पार्ट,
ये एम्बेडेड सिस्टम के अंदर है, जैसे कि आपका माइक्रोवेव ओवन है और आपका टोस्टर है या और घर की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती बिकॉज इट इज़ इन दी रॉम और यू डोंट रन एनी प्रोग्राम। बेसिकली ये अपना प्रोग्राम खुद ही विच इज़ द एग्जीक्यूशन और फंक्शनिंग, स्पेशल फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस या अभी आपको जो फैसिलिटीज़ है आपके मोबाइल फ़ोन पे। सो बेसिकली ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म इसलिए नहीं करता कि डेट इज़ इन दी रॉम। और इसकी भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि थर्ड एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाई। बट वी वांट टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स and still will evolve that. First of all, we'll talk about how to run multiple program without memory abstraction. और फिर बाद में हम बात करेंगे एडवांस लेवल पे जाकर कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम रन करेंगे विद मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन, कुछ फैसिलिटीज जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से डिमांड करेंगे। येट इवन इफ इट इज नो मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन, येट लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। Save the entire content of the memory to a disk file, then bring it and run it onto the memory and execute the program. So you load the program from the disk into the memory and execute that. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनिशियल डॉस की बात करें, आप एक कमांड एंटर करते हैं और वो कमांड क्या करती है, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम जो डिस्क के ऊपर उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ट्री कमांड है या आपकी एक्स कॉपी कमांड है या कोई और कमांड है, उस प्रोग्राम को वो हार्ड डिस्क से, फ्लॉपी डिस्क से और हार्ड डिस्क से उसको लोड करके मेमोरी के अंदर लेकर आता है और फिर उसको वहां पर एग्जीक्यूट करता है। Could swap new program into the memory from the disk and send old one onto the disk. अगर तो old one program also comprising certain data या some part जिसमें कि आपने कुछ modification की है, तब तो उसको आपको write back करने की ज़रूरत है। But if you have just choose it as a read only, तो फिर आपको write back नहीं करना है, लेकिन आपको disk से load करना है memory के अंदर। Only one program at a time in the memory, that's why it is very simple. लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि अब आप multiple program जो है, you are bringing one program one after the other and executing it onto the same machine. No concurrent, so no conflict. No concurrent means के no concurrent processes are available. और एक वक्त में आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोसेस के दरमियान में कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि देयर इज ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूटिंग, देयरफॉर देयर इज नो कन्फ्लिक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट के डिस्क से आप एक प्रोसेस को लेकर आते हैं मेमोरी में, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और ब्रिंगिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी और टेकिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी इनटू द डिस्क इज कॉल्ड स्वैप। और इसके बाद ब्रिंगिंग इन इज कॉल्ड स्वैप इन, यानी कि डिस्क से मेमोरी में आने को हम स्वैप इन कहते हैं और मेमोरी से डिस्क में जाने को हम स्वैप आउट कहते हैं। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट। IBM स्टैटिक रीलोकेशन आइडिया मैंने आपको शायद जिक्र किया था जब वी टॉक्ड अबाउट IBM 360 के देयर वाज अ स्पेशल हार्डवेयर दैट वाज इन्वेंटेड with the Multex or with the TSS operating system that made it possible to run multiple programs concurrently even without swapping. जो पीछे है ना, उसमें तो एक वक्त में एक प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में, एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी में आता है, एग्जीक्यूट होता है, वापस चला जाता है और फिर ये दूसरा प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर आता है, वो एग्जीक्यूट होता है। हियर द डिफरेंस इज कि यू कैन कीप मल्टीपल प्रोसेसेस इनटू द मेमोरी। अब जब आप मल्टीपल प्रोसेसेस मेमोरी में रखेंगे तो सबसे पहले वो जो बात मैंने पहले कही थी कि देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ सकता है बिकॉज यू हैव नाउ मल्टीपल प्रोसेसेस विच आर प्रेजेंट इनटू द मेमोरी एट द सेम टाइम। So there is a conflict of interest, or there could be a possibility that one process could destroy the data of the other process. लेकिन it was only possible क्योंकि the special hardware was launched. और उस hardware क्या चीज़ थी basically? It divided the memory into 2K blocks and associated 4-bit protection key with each chunk, keeping keys in the register. एक 4 बिट का कोड फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन किया गया
डिस्क कोड को आप यूनिकली असाइन कर सकते हैं हर प्रोसेस के साथ। तो जो चंक जो है प्रोसेस को एलोकेट हुआ है, उस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो 4 बिट का कोड है, डेट इज केप्ट इनटू द रजिस्टर, डेट इज केप्ट इनटू द रजिस्टर और इनटू द की। इस की को जब रजिस्टर के अंदर रखा जा सकता है, हम ये भी कह सकते हैं, तो वेन एवर अ यूजर वांटेड टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ द मेमोरी, तो देखते हैं कि क्या ये जो यूजर है इसको ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक अलॉटेड है। अगर तो वो ब्लॉक इज अलॉटेड टू दैट पर्टिकुलर यूजर, देन द यूजर इज अलाउड टू run that particular piece of instruction or access that piece of instruction. But if that chunk is not allocated to that particular user, then the user is denied access. इस तरीके से उस protection को enforce किया गया। So if a machine with a 1 MB memory needed 512 of 4-bit registers for a total of 256 bytes of key storage, बड़ा आसान है कि हमने इस 1 MB को डिवाइड किया है 2K के ब्लॉक्स के साथ, और ये हमारे तकरीबन बन गए 512 ब्लॉक्स बन गए, और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी बिट्स बन जाएंगी, और इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो बाइट्स बन जाएंगी, तो आपके पास 256 बाइट्स बन जाएंगे। ठीक, यानी कि इसको 1 MB को डिवाइड करें इससे 1 MB, और इसको अगर आप डिवाइड करें 2K के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 512। फिर 512 के आपके 4 बिट्स आपके हर चंक के लिए चाहिए, और इसकी फिर आपने बाइट्स बना ली, डिवाइड बाय 8, तो आपके पास यहां पर आ गया 256। ठीक, ओके। Put the key in PSW. PSW key, we have already talked about the PSW. PSW is a process status word. It is a register. That register is present with the CPU. आप CPU के अंदर जो PSW रजिस्टर है उसकी 4 बिट्स जो है इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पास की है उस पर्टिकुलर चंक की, उस पर्टिकुलर प्रोसेस की। सो इफ द चंक इज एलोकेटेड, एक से ज्यादा चंक भी आप एलोकेट कर सकते हैं प्रोसेस को। तो अगर उसका चंक का आपके पास की अवेलेबल है तो फिर आप उस प्रोसेस को अलाउ करेंगे, अदरवाइज आप उसको मना कर देंगे और एक्सेस डिनाइड कर देंगे। हार्डवेयर प्रिवेंट्स द प्रोग्राम फॉर एक्सेसिंग द ब्लॉक विद अनदर प्रोटेक्शन की। ठीक है, तो दैट्स द वे दिस प्रोटेक्शन की मदद से आप मल्टीपल प्रोसेसेस को लाने की आपने हिम्मत की, एंड द पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की टू हैव मोर देन 1 प्रोसेसेस प्रेजेंट इनटू द मेमोरी। ये सारी एफर्ट्स क्यों की? क्योंकि प्रोसेस को स्वैप आउट होने में टाइम लगता है और जो कि स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस को। तो सीपीयू की कंजम्पशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती। बट इफ दे ऑलरेडी विद इन द मेमोरी, इफ यू हैव अ 3, 4, 5, 6 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली अवेलेबल, तब आपने सिर्फ उसको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जंप कराना है सीपीयू को, और डिस्क से मेमोरी में जाने का टाइम आपने बचा लिया। दैट्स वे वी कैन improve the performance of the system. Let's take an example कि किस किस्म की परेशानी हो सकती है when we have multiple processes loaded into the system. अगर एक के अंदर हम देखें रीलोकेशन की जरूरत क्यों पेश आती है, रीलोकेशन है क्या और जरूरत क्यों पेश आती है, उससे पहले हम let's look into the example. Example A में 16K प्रोग्राम जो है is loaded है। यहाँ पे कंट्रोल इसके पास आता है और ये कहता है जंप टू 24, और 24 कहता है कि मूव इंस्ट्रक्शन है, और ये मूव इंस्ट्रक्शन जो है दैट स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। बी, दिस इज अनदर 16K प्रोग्राम जो कि आपके पास एक और सेट अवेलेबल है, और इसकी जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू 28, और ये इसके बाद जाकर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। सी में द 2 प्रोग्राम्स आर लोडेड कंसेक्टिवली इनटू द मेमोरी एड्रेस 0। आपने क्या किया कि 0 से लेके यहां तक आपने पहला प्रोग्राम लोड कर दिया, दिस वन, और फिर इससे ऑनवर्ड आपने दूसरा प्रोसेस या दूसरा प्रोग्राम जो है वो आपने लोड कर दिया। Now, jump 28 in program B trashes add instruction.
अब अगर आपने इसकी ये जंप 28 वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है तो ये प्रोग्राम 2 की है, जाना तो इसको इधर जाइए, लेकिन जनाब ये यहां पहुंच जाएगी। क्यों? द रीजन इज both the programs reference absolute physical memory. If the first program is referring an absolute physical memory of address 24, this one is also referring an absolute memory which is 28. अब जब एब्सोल्यूट रेफरेंस करेंगे तो ये तो यहां पर नहीं है, यहां पर तो एब्सोल्यूट लोकेशन के ऊपर ऐड इंस्ट्रक्शन पड़ी है, जबकि इसका मकसद तो इस कंपेयर इंस्ट्रक्शन के ऊपर आना था। सो दैट इज द प्रॉब्लम। स्टैटिक रीलोकेशन, लोड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एट एड्रेस एक्स। पहली इंस्ट्रक्शन आपने एड्रेस एक्स के ऊपर रखी, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक एक्स आ गया, 0 से लेके 16384 इज x। आपने इसको यहां पर x पे रखा और फिर नेक्स्ट x प्लस उतना एड्रेस आप ऐड करते जाए, x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 12, दिस इज x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 12। तो जनाब ये x का ऑफसेट आपने इसको असाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक रीलोकेशन, बट दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। आप हर इंस्ट्रक्शन को अगर आप उसका एड्रेस आप चेंज करेंगे और सारे एड्रेस आप चेंज भी नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विच वन इज एन एड्रेस। फॉर एग्जांपल मूव रजिस्टर कॉमा 28, इसके अंदर आप एक्स ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू 28 टू बी एडेड इनटू द रजिस्टर। इसके अंदर अगर आप x करेंगे ऐड तो ये तो कंटेंट ही खराब हो जाएगा, एब्सोल्यूट नंबर आपका चेंज हो जाएगा। सो यू कैन नॉट ऐड x टू एवरीवेयर, यू कैन ओनली ऐड x टू द एड्रेस। जो अब आपको डिफरेंस देखना है कि वेर एवर यू आर रेफरिंग टू एन एड्रेस देन यू विल ऐड x, बट इफ यू आर रेफरिंग टू नंबर to a constant, then you will not add the address offset to that data. So that is something very interesting that we need to handle and we need to understand. So create an abstract memory space for the program to exist in the memory. So यहाँ पे अब हमें abstract memory space जो है वो हमें कंसिडर करनी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द एड्रेस स्पेस। ईच प्रोग्राम हैज इट्स ओन सेट ऑफ एड्रेस स्पेसेस। ऑब्वियसली हर प्रोग्राम जो है इज रेफरिंग टू इट्स ओन एड्रेस स्पेस। वो जो 24 था वो ए ने विद रिस्पेक्ट टू A24 कहा था, बी ने जो 28 कहा था विद रिस्पेक्ट टू बी उसने 28 कहा था। तो एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 टू सर्टेन नंबर इज द एड्रेस स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। द एड्रेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन। जो आपको याद होगा प्रोसेस की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था प्रोसेस, हर प्रोसेस की एक अपनी एड्रेस स्पेस होती है। तो दैट इज बेसिकली द प्राइम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। सो इस एड्रेस स्पेस को हम प्रोग्राम की एड्रेस स्पेस कहते हैं। इसको हम फर्दर कैसे डिस्कस कर सकते हैं? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। The concept of a logical address space is that it is bound to be a separate address space from the physical address space. That is the main focus of the memory management. Physical address space is the physical address of the memory. जबकि logical address space जो है is the address of a process. I repeat again. Physical address space is the physical address of the आपकी physical memory, whereas the logical address space is the address space of every process. So logical address guaranteed by the CPU, generated by the CPU. CPU जो है वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट करता है, आल्सो रेफर टू एज अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस। ये वर्चुअल क्यों है? क्योंकि आपको इसको मैप करना पड़ता है फिजिकल एड्रेस के साथ। तो हम ये कहते हैं कि जब आपका एक प्रोसेस जो है इस रेफरिंग टू अ सर्टेन एड्रेस स्पेस, तो हम कहते हैं प्रोसेस जो है एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस की बात कर रहा है। ये उस वक्त तक वर्चुअल है जब तक ये फिजिकल मेमोरी में जाके फिट इन नहीं हो जाती।
जब ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस फिजिकल मेमोरी में जाके फिट इन होगी तब आपको मैप करना पड़ेगा, हर वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करना पड़ेगा, और ये काम है आपके मेमोरी मैनेजमेंट का। फिजिकल एड्रेस आर एड्रेसेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट, क्योंकि आपकी फिजिकल मेमोरी का एड्रेस है और ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसको देख रहा है और इसको समझ रहा है और इसको एक्सेस कर सकता है। लिहाजा एक मैपिंग की जरूरत है जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस को फिजिकल एड्रेस के ऊपर मैप करेगी। लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर द सेम इन कंपाइल टाइम। स्टार्ट में क्योंकि आप फोकस कर रहे होते हैं तो जो भी जीरो से स्टार्ट होती है तो आप अज्यूम करते हैं कि मेमोरी है, ये फिजिकल मेमोरी होगी। बट जब आप उसको लोड करते हैं एट अ लोड टाइम, तो जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई कि प्रोग्राम ए जो है वो 0 से 16,000 तक लोड हुआ, प्रोग्राम बी 16,000 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो जीरो है वो 16,000 है, तो इट चेंजेस। और ये जो लॉजिकल है और फिजिकल एड्रेस दे डिफर इन दी एग्जीक्यूशन टाइम, कि आपकी लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस की किस पोजीशन के ऊपर जाकर मैप हुई है, और इसकी स्कीम हमें रिक्वायर्ड है। अब इसकी मैपिंग करने के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट चाहिए। दैट कॉन्सेप्ट्स आर दी बेस एंड लिमिट रजिस्टर। This is a form of a dynamic relocation. Base contains the beginning address of the program. Base contains the beginning address of the program, जो कि हमारी पहली स्लाइड के अंदर प्रोग्राम B जो था वो 16,000 से शुरू हो रहा था, तो B का जो जीरो है वो 16,000 है, या आम अल्फाज में हम उसको कहते हैं बेस। अगर तो B भी जीरो से लोड होता तो B की बेस भी जीरो होती, जैसे A की बेस जीरो है, लेकिन अगर B 16,000 पे है तो B की बेस जो है वो 16,000। इसी तरह ये जहां से वो प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है उस स्टार्टिंग एड्रेस को, जो कि एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता लेकिन वट एवर दैट नंबर, हम उसको जीरो अज्यूम करके उससे आगे हमने मूव करना होता है। देन लिमिट कंटेन्स द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। लिमिट को हम दो तरह से भी देख सकते हैं कि आपका लिमिट रजिस्टर जो है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके बेस स्टार्टिंग एड्रेस से लेके एंड कहां पर हो रहा है, और एक ये है कि लिमिट, आपके बेस की लिमिट क्या है, नीचे से नीचे आप नहीं जा सकते। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो 16,000 से नीचे आने की कोशिश करेगा तो लिमिट रजिस्टर उसको रोक देगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि जो लिमिट रजिस्टर की इंप्लीमेंटेशन के बेस तो आपको पता है और आप अपर लिमिट को जो है कंट्रोल करते हैं विद द लिमिट, बट जो मैं आपको ड्राइंग जो आपकी बुक में दी हुई है, जो एग्जांपल दी हुई है, उसमें वो लिमिट है कि इससे नीचे आप नहीं जा सकते। लिहाजा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको आपने लिमिट किया हुआ है लिमिट रजिस्टर से, तो नो प्रोसेस कैन क्रॉस द लिमिट दैट इज प्रोवाइडेड, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया में एंटर नहीं हो सकते। द डिसएडवांटेज इज द एडिशन एंड कंपैरिजन हैव टू बी डन ऑन एवरी इंस्ट्रक्शन। ये एक प्रॉब्लम है कि आपको एक एडिशनल काम करना पड़ेगा, हर इंस्ट्रक्शन के लिए आपको पहले ऐड करें और फिर उसको कंपेयर करें। लिहाजा बेसिकली ये काम जो है बजाय इसके कि वो सीपीयू करे, इसके लिए हार्डवेयर जो है वो यूज किया जाता है, और लिमिट और बेस रजिस्टर्स आर दी हार्डवेयर जो कि आपके नंबर में ऑफसेट्स ऐड करते हैं और वो कंपैरिजन का काम करते हैं। कंप्यूटर CDC 6600 और Intel 88 जो है, they have got this type of facility of the base and limit registers. Memory management unit. A memory management unit by itself is a hardware and it has some instructions are coded into the software also. तो hardware और software की combination से बनता है, but broad spectrum में it is a hardware device that maps the virtual to physical address. अब virtual कौन सा? हमने कहा था कि जो प्रोग्राम की एड्रेस स्पेस है that is a virtual address space, और जो physical address है that is the address of the memory. So it is the responsibility of MMU, memory management unit, to map the virtual address into the physical address. In MMU scheme, the value in the relocation register is added to every address generated by the user process. अब मैंने आपको बताया ना, कंटेंट में नहीं, एड्रेस में आपने उसको ऐड करना है, उसको बेस को,
ठीक है, ताकि जो रीलोकेशन है, इसको स्टैटिक रीलोकेशन कहते हैं, क्योंकि ये रीलोकेशन कांस्टेंट है, इट रिमेन्स द सेम जब तक आपकी वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। एट द टाइम इट इज सेंट टू द मेमोरी, किस लोकेशन से वो लोड होना शुरू हो रहा है। द यूजर प्रोग्राम डील्स विद लॉजिकल एड्रेसेस, इट नेवर सीज द रियल फिजिकल एड्रेसेस। ऑब्वियसली जब आपका यूजर का प्रोग्राम आपने डेवलप किया है तो यू कैन नॉट इंश्योर कि ये किस लोकेशन के ऊपर जाकर लोड होगा, या विच लोकेशन इज टू बी प्रोवाइडेड for these instructions to be loaded into the memory of the computer. So आपके पास उस वक्त जो एड्रेसेस होते हैं गो के आप assume उसको 0 to n ही करेंगे, बट उसको आप हम कहेंगे लॉजिकल एड्रेसेस। This is dynamic relocation unit. This is the hardware basically. So CPU generates a logical address. For example, this logical address is 346. Then relocation register, which is a hardware that contains 14,000. ये इसके अंदर automatically add हो जाएगा। तो हर वो instruction जो 346 को रेफर कर रही है इस MMU में, जो कि एक हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर इसके एड्रेस को ऑटोमेटिकली ऑगमेंट कर देगा, ऐड कर देगा, ऑफसेट कर देगा, और उसको 14,000 का ऑफसेट जो है उसको 14,346 पे भेजेगा, और वो उसके बजाय इसके कि ये 346 यहाँ पर हो, अब ये 14,326 लोकेशन को जाके एड्रेस करेगा। ओके, so dynamic loading, routine is not loaded until it is called। एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप सारे के सारे प्रोग्राम को एक वक्त में लोड ना करें, जब आप किसी प्रोग्राम को कॉल करें उस वक्त आप उस रूटीन को लोड करें। इट्स ए बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन। अनयूज्ड रूटीन may not be loaded at all। अब unused routine होती क्यों है प्रोग्राम के अंदर? In a program you provide all the eventualities। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए, कोई ऐसा चेक लग जाए कि आपको उस रूटीन की जरूरत पेश आ जाए। So you need to provide each and every set of instruction to handle all sorts of eventualities। That eventuality may or may not happen। तो यहाँ डायनेमिक लोडिंग से मुराद ये है कि whenever there is a need of a subroutine, there is a need of a program, only then that program should be loaded। unnecessarily उस प्रोग्राम को लोड ना किया जाए। It is useful when large amount of code are needed to handle infrequent occurring cases, जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताई। No special support for the operating system is required to implement through program design। आप ऑटोमेटिकली ये एक तरीका है कि जब आप कुछ पार्ट प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा और आपके डिज़ाइन के अंदर इंटरफेयरिंग नहीं करनी, और ना ही आपने कोई डिज़ाइन में कोई आपने स्पेशल सपोर्ट चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। हाँ, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉलिसी है, व्हेनेवर अ रूटीन और प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है मेमोरी से तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्वैप इन करेगा। स्वैप इन का मतलब मैंने आपको बताया, मेमोरी से हार्ड डिस्क से मेमोरी में लेकर आएगा फॉर द एग्जीक्यूशन। Continuous allocation। Main memory usually split up into two partitions। One is resident operating system, usually held in the low memory with interrupt vectors। स्टैंडर्ड आपने वेक्टर टेबल बनाया हुआ होता है और स्टैंडर्ड रेफरेंसिंग होती है, तो इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 से स्टार्ट करके लोअर पार्ट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते हैं। द यूजर प्रोसेस देन हेल्ड इन द हायर पार्ट ऑफ द मेमोरी। ठीक है, लोअर पार्ट जो है, प्रिविलेज पार्ट जो है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखते हैं। रीलोकेशन रजिस्टर यूज्ड टू प्रोटेक्ट यूजर प्रोसेस फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए वो लोअर से हायर की तरफ अब लोअर पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो जो मैंने आपको लिमिट रजिस्टर के बारे में बताया कि आपकी जो ये मुख्तलिफ बुक्स में लिमिट रजिस्टर जो है वो नीचे जाने से रोकता है उसको। बेस रजिस्टर कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस। लिमिट रजिस्टर कंटेन्स द रेंज ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस। ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी लेस देन द लिमिट रजिस्टर। ये
इम्प्लीमेंटेशन, वो जो जैसे मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर तो वो आप कहते हैं कि ये स्टार्टिंग डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बेस एड्रेस स्टार्टिंग बता रहा है और लिमिट एड्रेस उसका अपर पार्ट बता रहा है। लेकिन जो मैं अभी आपको एग्जांपल्स जो मैंने बुक से पिक किए हम हम देखेंगे कि लिमिट रजिस्टर को हम किसी और अंदाज से भी यूज कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मैप्स लॉजिकल एड्रेसेस डायनेमिकली। डायनेमिकली का क्या मतलब है? व्हेन एवर दे आर नीडेड, जब वो रिक्वायर्ड होती हैं, जब उनकी जरूरत पेश आती है, तब मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो उसको ट्रांसलेट करता है। किसको ट्रांसलेट करता है? योर वर्चुअल एड्रेस विच इज रेफर्ड इन योर प्रोग्राम। प्रोग्राम में कैसे रेफर होगा? वर्चुअल एड्रेस आपको पता है देयर इज अ प्रोग्राम काउंटर. The program counter contains the address of the next instruction to be executed. फर्ज कीजिए the next instruction which is to be executed is the address of a subroutine. अब ये सबरूटीन जो है अनएक्सपेक्टेड आप इसको कॉल कर रहे हैं. रिंग टाइम के ऊपर दिस सबरूटीन विल हैव अ सर्टेन एड्रेस, सो यू विल से कॉल. अब सबरूटीन का नाम तो नहीं होगा, वहां पे एड्रेस होगा और वो लॉजिकल एड्रेस होगा. आप कहेंगे कॉल 20,840. 20,840 जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस है जो आपकी सबरूटीन काउंटर सबरूटीन का लॉजिकल एड्रेस है. तो अब प्रोग्राम काउंट जो है, प्रोग्राम पीसी जो है, प्रोग्राम काउंटर जो है, उसमें ये एड्रेस लोड हो जाएगा इंस्ट्रक्शन का. तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको रियलाइज करेगा कि यू आर जंपिंग टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम. अब वो वाला पार्ट जो है डेट माइट नॉट बी देयर इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो वो फिर वो स्वैप करेगा, कुछ पार्ट स्वैप आउट करेगा जगह बनाने के लिए और उसको स्वैप इन करके लेकर आएगा रूटीन को फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी, सो डैट कि जब वो उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में फेच किया जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई. सो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर उसका यूज जो है ना स्लाइटली डिफरेंट है. लॉजिकल एड्रेस ये देखता है सबसे पहले लिमिट रजिस्टर के उस लिमिट के अंदर है. हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं चलिए कि क्या वो विद इन द लिमिट है. फिर रीलोकेशन जो कि आपका बेस एड्रेस है वो उसके साथ ऐड किया जाता है और फिर वो उसको मेमोरी को आप पॉइंट आउट कर देते हैं. ओके. अब अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर हम कहते हैं कि बेस रजिस्टर इज द स्टार्टिंग एड्रेस which is 16,384 is the starting address. इससे ऑनवर्ड आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अब ये जो लिमिट रजिस्टर है देखेंगे इससे नीचे आपको नहीं जाने देगा, या इस लिमिट रजिस्टर को जो मैंने पिछली आपको एग्जांपल दी है ये आपको बताएगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो है लिमिट रजिस्टर जो है वो इससे ऑनवर्ड नया प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. लिहाजा ये जो है ये आपकी लिमिट को यहां तक महदूद कर देगा. ओके. सो आपको बेसिकली क्या चाहिए होता है? आपको एक स्टार्टिंग चाहिए होता है, एक आपको एंड चाहिए होता है. एक स्टार्टिंग बेस बता रहा है, एंड जो है वो लिमिट बता रहा है. अब अगर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन अगर आप किसी और स्टाइल से भी अगर आप उसको देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअली आपके पास दो पॉइंटर हैं, एक पॉइंटर स्टार्टिंग के लिए है और एक पॉइंटर एंड के लिए है. ओके. और यही काम है बेस और लिमिट रजिस्टर का. तो बेस का मतलब है कि इट विल ऐड 16,384 टू जंप टू दिस इंस्ट्रक्शन. अगर आपने 28 के ऊपर जंप कराना है तो ये 28 पे वो जो मैंने लास्ट टाइम कहा था ये इधर आने की बजाय इधर आने की बजाय अगर आप कहते हैं ना जंप टू 28 तो इसको तो ये पिछले प्रोग्राम में घुस जाना चाहिए. नो, इट विल नॉट जंप हियर, क्योंकि इसका बेस रजिस्टर जो है वो उसके अंदर ऐड कर देगा और जब इसके अंदर ये ऐड करेगा तो ये 16,384 के ऊपर ये जंप 28 विल टेक इट टू यहां से कोई 28 के ऊपर जाएगा, कंपेयर के ऊपर जाएगा. तो वो जो प्रॉब्लम हमने स्टार्ट के अंदर देखी थी वेयर
it's automatically goes into the address space of another process, उसको avoid कर सकता है by simply adding the address of the base register, और उसके हिसाब से it can easily mark to the required address. तो अब आप इस तरीके से multiple प्रोग्राम जो है उसके अंदर CPU को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की एड्रेस स्पेस को आप सेपरेट कर सकते हैं. How to run more program than fit into the memory of the computer. हम टेक्निक अभी तक जो हमने देखी, हमने बात की कि एक वक्त में हम एक प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर नया प्रोग्राम लाते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं. फिर हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर की मेमोरी में जितनी उसकी मेमोरी है उतने आप उसके अंदर प्रोग्राम जो है वो फिट इन कर सकते हैं. एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम फिट इन कर दिया, तीसरा प्रोग्राम फिट इन कर दिया. लेकिन using the memory management, there is no limit. There is no limit to run number of programs on one computer. So you can have as many as hundreds of processes that you can run simultaneously onto the computer, or even each program could be of the size of the 200 MB. फर्ज किया कि 200 MB का उसकी 100 MB उसकी मेमोरी है, इवन आप 200 MB का प्रोग्राम भी उसके अंदर रन कर सकते हैं. तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं. हाउ दीज टू अप्रोचेस आर पॉसिबल, उसके लिए फिर फर्दर टू अप्रोचेस है. पहली बात, एक से ज्यादा प्रोग्राम, लिमिट से ज्यादा प्रोग्राम. दूसरे, उसकी फिजिकल मेमोरी के साइज से बड़ा प्रोग्राम. ये दो चीजें हैं जिसको हम रन करना चाहते हैं, और इसको रन करने के भी दो तरीके हैं, टू अप्रोचेस हैं जिसको रन कर सकते हैं जिस तरीके से. नंबर वन, स्वैपिंग. ब्रिंग प्रोग्राम्स इन एंड रन इट फॉर अ व्हाइल. आप हार्ड डिस्क में सारे प्रोग्राम्स को रख लें, 200 के 200 प्रोग्राम्स को हार्ड डिस्क में रख लें. आप कमिट करें, यस वी विल प्रोवाइड द सर्विस टू ऑल 200 प्रोग्राम्स. उन 200 प्रोग्राम्स को मेमोरी में रखें, और वन बाय वन प्रोग्राम या 2 और 3 और 5 जितने प्रोग्राम मेमोरी में एक वक्त में आ सकते हैं उनको मेमोरी में जाएं, एग्जीक्यूट करें. फिर उसको मेमोरी से हार्ड डिस्क में भेजें, नए प्रोग्राम मेमोरी में जाएं, उसको एग्जीक्यूट करें. इसको तो कहते हैं स्वैपिंग. दूसरा, वर्चुअल मेमोरी. अलाउ प्रोग्राम्स टू रन इवन इफ ओनली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज इन द मेमोरी. अब इसमें दूसरी बात कवर होगी कि एक प्रोग्राम जो है वो उसको 200 MB मेमोरी चाहिए, जबकि मेमोरी सिर्फ 100 MB है. तो आप क्या करें, थोड़ा सा पार्ट, जितना पार्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो पोर्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम का, ब्रिंग ओनली दैट पोर्शन of the program from the hard disk into the memory of the computer and then execute it over there. बात समझ में आई? पहले केस में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं. अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हम काफी सारे प्रोग्राम्स लेके आ सकते हैं. कैसे? We can bring a little program 1 into the memory of the computer, क्योंकि अब हमें एक नया आइडिया मिल गया. Then we bring program number 2 into the memory of the computer, program number 3 into the memory of the computer, program number 180 into the memory of the computer. क्योंकि अब हमने पूरे का पूरा प्रोग्राम नहीं लाना, बल्कि हम थोड़ा सा पार्ट प्रोग्राम का which is to be executed will bring it into the memory of the computer. तो students, we have two approaches. एक स्वैपिंग, जिसके जरिए पूरे का पूरा प्रोग्राम मेमोरी के अंदर आता है, और एक से ज्यादा प्रोग्राम्स आप मेमोरी में जा सकते हैं, लेकिन आप कमिट कर सकते हैं उसकी मेमोरी में फिट आने वाले प्रोग्रामों से ज्यादा. अगर मेमोरी में 10 प्रोग्राम फिट आते हैं तो आप 50 प्रोग्राम्स की कमिटमेंट कर सकते हैं. दैट कैन बी रन साइमल्टेनियसली बाय स्वैपिंग इन स्वैपिंग आउट. पूरे प्रोग्राम को स्वैप इन स्वैप आउट करें. एक तो ये अप्रोच है. और दूसरी अप्रोच कि आप जितने चाहे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली मेमोरी में जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर आए विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. आई होप दोनों आपको समझ में आ गई हैं अप्रोचेस. लेट्स टॉक अबाउट स्वैपिंग फर्स्ट. स्वैपिंग इज a technique where we can load multiple programs into the memory of the computer. Let's take this particular example. This is the memory of the computer 0 to max. और मैंने आपसे कहा कि हम prefer करेंगे कि operating system should be in the lower part. We bring process A into the memory of the computer. अभी हमारे पास गुंजाइश है. We bring process B into the memory of the computer.
Then we bring process C into the memory of the computer. These 3 programs will be executed. But हमने तो commitment 3 से ज़्यादा की हुई है. Now we want to bring D into the memory of the computer. If we want to bring D into the memory of the computer, then what is required? Basically, you will now decide कि भी A सबसे पहले आया था, A को आप swap out करें. कहाँ जाएगा ये? Now from the memory of the computer it will go to the disk. वो जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाई थी स्वैपिंग की. It will go onto the disk. इससे यहाँ पर एक होल बन जाएगा, एक फ्री स्पेस बन जाएगी मेमोरी की ए के साइज जितनी, और इसके अंदर आप डी को फिट कर दें. ठीक, अब पहले एक होल यहाँ पे बचा हुआ था, अब एक होल यहाँ पे बचा, हम इसकी भी बात करेंगे. You bring D into the memory of the computer. Then after some time you require कि भाई अब A को दोबारा चांस मिलना चाहिए. अब आपने डिसाइड किया कि अगर हम B को स्वैप आउट कर दें तो इतनी मेमोरी हमारे पास बन जाएगी कि हम A को दोबारा मेमोरी के अंदर ले आए. It may fit accurately or may not fit accurately. So you have to decide. You need a chunk. ये वो नहीं है जाके this is the difference. ये ख्याल रखिए, स्वैपिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे प्रोग्राम को मेमोरी में लाने की, जबकि वर्चुअल में हमने बात की थी कि पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी ब्रॉट इनटू द मेमोरी. तो यहां पे ये नहीं कर सकते कि ए का कुछ पार्ट लेकर आए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर, स्वैपिंग के अंदर, हम जो बात कर रहे हैं हम पूरे पूरे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, पूरे पूरे प्रोसेस के साइज की बात कर रहे हैं. ठीक है, लिहाजा हमने ए को पूरे के पूरा ए जो है वो ये कराना है. अगर वर्चुअल की बात होती तो इसके अंदर भी हम ए को फिट कर सकते थे और यहाँ पे भी कर सकते थे. नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्वैपिंग, तो हम पूरे ए को वापस वे कराएंगे. सो ये सिलसिला चलता रहेगा और इस तरीके से क्या होगा कि मुख्तलिफ जगह पर मेमोरी के मुख्तलिफ होल्स बनते चले जाएंगे. इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दीज होल्स वी नीड टू कॉम्पैक्ट. वो जगह बनाते हैं ना, साथ साथ जगह बना देते हैं कि आपको जो सारे प्रोसेसेस को इकट्ठा कर दें ताकि कंटिन्यूस आपको जगह मिले और उसके अंदर एक नया प्रोसेस लोड कर दें. बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल. कंप्यूटर की टर्म के अंदर आप इसको साथ साथ नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. सारे प्रोसेसेस को आप रीएडजस्ट करेंगे तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा और फिर हर एक का आप बेस एड्रेस दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. जाहिर है आपका हर एक का बेस एड्रेस दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा, दोबारा से रीलोकेशन करनी पड़ेगी, दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और दोबारा से लोडिंग करनी पड़ेगी, चाहे ये मेमोरी टू मेमोरी ही क्यों ना हो. सो बेसिकली दिस इज नॉट डन, बल्कि ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मेमोरी है इसको हम बाद में एक टॉपिक के तौर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको फ्रेगमेंटेशन को कंसिडर करेंगे प्रोसेस और होल के हवाले से कि आइदर विल बी हैविंग इन द मेमोरी अ प्रोसेस or we'll be having a hole in the process, and we would like to talk about it कि how we should handle these processes and how should we handle the holes in the process. फिर एक और प्रॉब्लम भी है, programs grow as they execute. कोई इतना आसान काम नहीं है. मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी assumption की हम लोगों ने, rather what is already given in the book, और हमने assume किया कि A का ये एक फिक्स साइज है, B का फिक्स साइज है, C का फिक्स साइज है और D का भी फिक्स साइज है. नो, डायनेमिकली प्रोग्राम का साइज बढ़ता है. कैसे? स्टैक, रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल. अब आपका ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि stack, unstack, stack, unstack. When you push the data or when you pop the data, storing the data into the stack is through push and retrieving the data from stack is pop. So you will push the data into the stack and you will pop out the data from the stack. तो क्या हो रहा है? वो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ग्रो कर रहा है. स्टैक जो है उसका साइज बढ़ रहा है. व्हेन यू पुश द डेटा स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द स्टैक, स्टैक का साइज बढ़ेगा, आपके प्रोसेस का साइज बढ़ेगा. जब आप उसको वापस निकालेंगे वो स्क्वीज करेगा, साइज कम हो जाएगा. सिमिलरली डेटा सेगमेंट, heap of the variables which are dynamically allocated and release. अब प्रोग्राम के अंदर आप डायनेमिक मेमोरी मांग सकते हैं
आप एक डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, यू कैन डू दैट इन योर प्रोग्राम एंड यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द एडिशनल मेमोरी एंड यू कैन क्रिएट एन array while executing a program, or you can release an array while executing your program. You can create a linked list data structure during the execution in which you can add a node into the linked list or you can remove a node from the linked list. तो आपका जो डेटा सेगमेंट है वो भी आपका ग्रो कभी कर सकता है और स्क्वीज भी कर सकता है. सो देयर आर टू पार्ट्स which are dynamic, एक स्टैक और एक डेटा. Then there is a third part. Third part क्या है? Third part is your program. Fortunately, program आपने पहले से लिखा हुआ है, compile किया हुआ, उसका size fix है. So, जो third part है, which is the code of your program, that remains constant, but the data segment and the stack segment dynamically increase their size and decrease their size. So it's a good idea to allocate extra memory for both. हम जब एक प्रोग्राम को लोड करें इस मेमोरी के अंदर तो हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी उसको एलोकेट कर दें फॉर बोथ. कौन कौन से? वो दो पार्ट प्रोग्राम के विच डायनामिकली डिमांड एडिशनल मेमोरी, और वो है स्टैक और डेटा सेगमेंट. When the program goes back to the disk, don't bring holes along with them. ये बात अभी आपको समझ में आएगी when I show you a drawing here. अब देखिए, we have loaded a program size and this is room for the growth. We loaded B and then we loaded the room for the growth. This is A. This is just an extra space. लेकिन अगर हम चाहें तो बड़ी इंटेलिजेंट भी इस एक्स्ट्रा स्पेस को मैनेज कर सकते हैं. कैसे? सपोज दिस इज प्रोग्राम बी. प्रोग्राम बी में दिस इज द फिक्स साइज ऑफ प्रोग्राम बी, और ये क्या चीज होगी? अभी मैंने बताया, ये कोड होगा, इसका साइज फिक्स है, आपको पता है. अब आप क्या करें कि डेटा सेगमेंट को ग्रो करने के लिए ये जगह दे दें. स्टैक जो है रिवर्स ऑर्डर में ग्रो करता है, ठीक, क्योंकि वो उसकी इंप्लीमेंटेशन ऐसे आप कर सकते हैं कि वो रिवर्स ऑर्डर में ग्रो करता है. तो यू कैन पुट अ स्टैक एट द टॉप ओवर देयर एंड दिस इज बेसिकली अ होल. दिस इज अ होल. ये वो होल है जिसको आपने प्रोवाइड किया है फॉर द ग्रोथ ऑफ डेटा सेगमेंट. B data is a data segment और B stack is the stack segment of process B. ये B का data segment है जो grow करेगा और B का stack segment है grow करेगा. ये वो होल है. तो पिछली स्लाइड में जब हम ये बात करते हैं when bring program goes back to the disk, don't bring holes along with them. अगर जब आप इस प्रोग्राम को swap out करेंगे तो इस होल के साथ swap out ना करें. That is just a wastage of time and space. डिस्क पर भी स्पेस का वेस्ट करेंगे और इसके अंदर जो भी होल का गार्बेज है उसको आपको ट्रांसफर करने में भी टाइम लगेगा. सो जब आप उसको स्वैप आउट करें तो ओनली यूजफुल पार्ट दैट इज द कोड ऑफ द प्रोग्राम. सम टाइम मजे की बात है कोड जो है उसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्क में मौजूद होता है. सो दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन टू द डिस्क. यू नीड नॉट टू सेव दैट, बट यू डू नीड टू सेव द डेटा सेगमेंट एंड द स्टैक सेगमेंट वट एवर द डेटा इज अटैच विद देयर. और उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि इस होल को, और एक होल यहां पर भी है, इस होल को डू नॉट सेव इन ऑर्डर टू सेव टाइम. बट दैट इज समथिंग जिसके लिए हम डायनेमिक ग्रोथ जो है इंटेलिजेंट भी कर सकते हैं. सो this is actual in use, this is the room for growth, this is actual use, this is room for growth. So this is the room for growth for both stack segment and data segment, and this is room for growth for data segment and stack segment. Hope it is understood. Now we need some techniques. अब ये जो होल हम क्रिएट करते चले जा रहे हैं, we need the techniques to manage these holes. There are two techniques to keep the track of the free memory. ये होल जो है ना बड़े यूजफुल होल्स हैं. क्यों? These holes are basically the available memory. और जब हमने नए प्रोग्राम को, प्रोसेस को लोड करना है, then we will be searching these holes whether there is a suitable big size hole available to accommodate a new program into the main memory of the computer. That is the borderline. So obviously we have to
carefully manage all these holes so that they could be fruitfully utilized for the loading of the program and execution of those programs into the memory. There are two methods. One is called a bitmap method and second one is called a linked list method, through which we can manage the processes and holes. Let's see how. First one, bitmap. Let's assume a snapshot, a picture of the memory. हम assume करें कि memory जो है इसमें इस particular memory के अंदर process A loaded है, whatever the case may be. अब इसके अंदर जो हमने dynamic growth की जो हमने बात की है उस dynamic growth को हम बीच में assume करते हैं, and because हम वो इस process से ले नहीं रहे, that is allocated to the process for the dynamic growth. So we assume that this is a process complete A. This is unused hole in the memory. Then the process B, contiguous to process C, then a hole, then a process D, then a process E, then there is a hole, and then blah blah, further process. हमने एक snapshot via one section of the memory का. Now, we can prepare a bitmap. Bitmap says that each allocation unit क्या है, अगर हम इसको assume करें एक word है तो एक word के लिए एक bit, अगर हमारा word size is suppose 32 bit, तो अब understood है quickly कि जो bitmap आपका होगा it will be 1/32 of the size of the memory. ठीक है, क्योंकि हर 32 बिट के लिए एक बिट आपको चाहिए होगी, और हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. यू कैन हैव 1 बिट फॉर 1K, बट उसके अंदर फिर वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे. विद इन 1K जो वेस्टेज होगी वो वेस्टेज आपको एकोमोडेट करनी पड़ेगी. ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम एलोकेट करेंगे एक एलोकेशन यूनिट एलोकेट करेंगे, और एक एलोकेशन यूनिट जो होगा वो 1K का होगा. 1K में अगर वो हाफ के यूज हो रहा है, हाफ के वेस्ट होगा, तो इट इज अ ट्रेड ऑफ that we need to very carefully examine कि what should be the size of the allocation unit. अब यहाँ पे देखें कि process A is occupying 1, 2, 3, 4, 5 allocation units. So we have 1, 2, 3, 4, 5 ones. Then there are 1, 2, 3 holes represented by 0. Then we have holes for, the allocation unit for B, allocation unit for C, and then there are 2 holes here. ये वाले 2 holes. Then this allocation unit for D and E, और ये जो आपके 3 holes हैं वो they are being represented like this. In this way you can maintain, or basically you can also maintain a linked list structure where आप ये कर सकते हैं hole is represented by H, then the starting address, then the length. That is the another way through which you can just maintain that, which is called linked list of processes. पहला bitmap है और दूसरा linked list है. इसमें हम कह सकते हैं यही चीज कैसे है, process. That is this is a process. This is not a whole. Starting from the 0, starting address. Length of this is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Length is this 5. Then it contains the address of the next chunk. Next chunk is not a process. Next chunk is a whole, which starts at 5. This is 0, 1, 2, 3, 4. So its starting address is 5. Size is 3. Then it contains the address of the next, which is P. Starting address is 8. Size of the chunk is 6. Next address is P. Starting address is 14. Size of C is 4. Similarly, you can just have a linked list. आप linked list के जरिए भी इन holes को और processes को maintain कर सकते हैं to further utilization. Let's talk about it. ये तो बड़ा आसान है, हमने इसको देख लिया कि how we can just handle that. लेकिन sometime the searching of the bitmap is a bit clumsy, or sometime if it is not the word boundary, तो ये किसी दरमियान की लोकेशन से आपको होल मिलेगा, और आपको उस लोकेशन के ऊपर आप यू मे नॉट बी एबल टू लोड द न्यू प्रोसेस. सो बेसिकली आपका लोकेशन यूनिट को और मेमोरी को बड़ा
ऑप्टिमाइज तरीके से यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट, सो दैट के व्हेन एवर यू फाइंड आउट, अब इसमें हमने इन ऑर्डर टू लोड अ प्रोसेस ऑफ साइज 8 एलोकेशन यूनिट, you will be required to search 8 consecutive holes. 8 consecutive holes minimum आपको चाहिए in order to load a process which requires the 8 allocation unit. So वो आपको एक सर्चिंग मैकेनिज्म जो है बिटमैप के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, एंड थ्रू दैट यू कैन मैनेज द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ बिटमैप. अब हम दूसरे को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं. पहले लेट